On April 3, 1973, first handheld cellular phone was invented, giving humanity a massive technological advancement. Anything and everything slowly made its way onto that mobile phone. Wanna call somebody? Use a phone. Finding a location? Use a phone. Want to share pictures? Use a phone. Watching movies, payments, camera, documents, notes, study? Use a phone. Slowly, that invention turned into a necessity. From need to want, from want to desire, from desire to addiction. Even if we are in an event, or we are studying, if we are waiting for somebody, or we are going to do something actually useful. Why? Why do we keep checking our phone? The moment we wake up, the first thing we do is to look for our phones. फोन उठाया अलार्म बंद करने के लिए, बट देन व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लेते हैं, एक बार इंस्टा देख लेते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया, while eating our breakfast, doing our work or even resting. फोन तो हर जगह ही है. Even if there is nothing important or specific, we still have that urge to just check on the phone, turn it on and turn it off again. Even रात को सोने से पहले एक आखिरी बार फोन चेक करना इज तो नेसेसिटी, राइट? अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है, that is why does it happen? Well, अगर मैं एक शब्द में आंसर दूं, then dopamine. Let's just talk about dopamine. Dopamine is also known as a feel-good hormone. It gives you a sense of pleasure. It also gives you the motivation to do something when you are feeling pleasure. Dopamine आपकी body के reward system का part है. The system that was designed from an evolutionary standpoint to reward you whenever you do something that is important for you to survive, like खाना पीना etc. जिंदा रहना. एज ह्यूमंस हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड है उन एक्टिविटीज को ढूंढने के लिए और उन्हीं एक्टिविटीज को करने के लिए जिसमें हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज इन्वॉल्व हो. व्हेन यू डू समथिंग प्लेजरेबल, योर ब्रेन रिलीजेस हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन, जिससे यू फील गुड एंड यू वांट more of that feeling. This is the exact reason why it feels so damn good to have junk food or drugs in case of drug addict, because these things trigger a large amount of dopamine release in your brain, which gives you the feeling that you are on the top of the world and you want to repeat the same experience again and again. This is exactly what happens in the case of using mobile phone. Companies ने specific ऐसे लोग hire कर रखे हैं जो ये बैठ के डिजाइन करते हैं कि how they can make their websites और apps addictive. How can they make sure कि जो वो apps है, जो उनके websites हैं, जब आप उनको यूज करोगे दे कैन ट्रिगर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज, ताकि आप उन साइट्स को बार बार विजिट करते रहो. क्या लगता है आपको जकरबर्ग भैया बैठ के क्या करते रहते हैं? वो यही कोशिश करते हैं कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव बना पाए. नाउ व्हाट बेसिकली इज एडिक्शन? ये एडिक्शन है क्या? तो एडिक्शन इज नथिंग but your brain's response to any activity which leads to high amount of dopamine release. Our brain works in a really weird manner. It always seeks dopamine, but the higher the amount of dopamine you feed to your brain, the higher its want for dopamine increases. Let's say आप इंस्टा पे कोई फोटो अपलोड करते हो and it gets a lot of likes and comments. इस चीज से आपके ब्रेन में एक छोटा अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होगा. नाउ क्योंकि आपके ब्रेन को थोड़ा डोपामिन मिल गया है, सो इट विल वांट मोर एंड मोर ऑफ इट. देन इट विल फोर्स यू कि आप एक और फोटो अपलोड करो बिकॉज उसको वो डोपामिन रिलीज चाहिए. देन आप एक और फोटो अपलोड करोगे, यू विल गेट मोर लाइक्स, यू विल गेट मोर कमेंट्स एंड मोर डोपामिन विल हिट योर ब्रेन. एंड हर बार आप यही चाहोगे कि पिछली बार से ज्यादा लाइक्स और ज्यादा कमेंट्स आए, बिकॉज उससे पिछली बार से ज्यादा डोपामिन मिलेगा एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट योर ब्रेन वांट्स. स्लोली व्हेन यू विल कीप डूइंग दिस, इट विल लीड टू एन एडिक्शन ऑफ लाइक्स, टू एन एडिक्शन ऑफ अटेंशन. और अब इस पॉइंट के बाद अगर किसी फोटो पे कम लाइक्स आते हैं, then you will feel frustrated or irritated, and that's exactly what addiction is. When we use our phones, scroll through Insta or YouTube Shorts, these short form contents give us a constant burst of dopamine, and that is what our brain keeps on demanding again and again and again. जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं, तब हमको वो डोपामिन नहीं मिलता, तो हमारा ब्रेन फोर्स करता है हमें टू डू दोज एक्टिविटीज इन विच डोपामिन रिलीज इज इन्वॉल्व्ड. जो आज के टाइम हमारे पास मोस्ट इजीएस्ट एक्सेसिबल सोर्स ऑफ डोपामिन है, वो है हमारा फोन. मतलब बस सोचना है, बगल में फोन रखा है, उठाओ, एक ऐप खोलो एंड यू विल गेट लोड्स एंड लोड्स ऑफ डोपामिन इंस्टेंटली. इसके लिए आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है. द रिवॉर्ड सिस्टम दैट वाज डिजाइन्ड टू मेक अस work to achieve something or to survive is being completely used against us by these companies and social medias to generate maximum profit. They have made these apps completely exploiting our reward system, and this is why we keep checking our mobile phones constantly just to get that burst of dopamine. सारा गेम ही dopamine का है भाई. This is a lot bigger issue than what it seems like when we are talking about it. तो अब इसका कोई सॉल्यूशन भी है या इट्स ऑलरेडी टू लेट? क्या हम फंस चुके हैं इस चीज में? देखो ऑनेस्टली बोलूं तो हम फंस तो चुके हैं, बट उसमें फंसे रहना है या उससे बाहर निकलना है, ये चॉइस आपकी है. देयर आर 2 or 3 स्टेप्स व्हिच यू कैन फॉलो टू फिक्स इट, बट अगर 1-2 बार करोगे तो कुछ नहीं होगा. यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप ऑन डूइंग इट. फर्स्ट,
minimize your social media usage. The biggest issue or the biggest reason why we keep on checking our mobile phones is social media. Social media ही सबसे ज्यादा एडिक्टिव और सोशल मीडिया ही सबसे ज्यादा डोपामिन बेस्ड है. अगर आप अपनी सोशल मीडिया एप्स का यूसेज कम कर सकते हो या लिमिट कर सकते हो, then you will have absolutely no issues with this dopamine exploitation. Second, complete dopamine detox. तो इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम अपने ब्रेन को जितना ज्यादा डोपामिन देंगे वो उतना ही ज्यादा डोपामिन मांगेगा. एंड फॉर्चुनेटली इसका उल्टा भी काम करता है, यानी कि आप अपने ब्रेन को जितना कम डोपामिन दोगे उसकी डोपामिन रिक्वायरमेंट भी उतनी कम होती चली जाएगी. सो व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स? डोपामिन डिटॉक्स बेसिकली एक चैलेंज है जहां आप अपने सारे डोपामिन सोर्सेज को क्विट कर देते हो या फिर बहुत ज्यादा ही लिमिट कर देते हो. नो सोशल मीडिया, नो सॉन्ग्स, नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम, नो वीडियो गेम्स, नो फास्ट फूड, मतलब सारे ही डोपामिन सोर्सेज को क्विट कर दो. यू डोंट नीड टू क्विट देम फॉर एवर. बस 1 या 2 हफ्ते के लिए उनको क्विट करो और आपके ब्रेन की जो डोपामिन रिक्वायरमेंट्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगी. मैं खुद एक डोपामिन डिटॉक्स करने वाला हूँ इस चैनल पे. लेट्स सी कब करते हैं. तो स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द अपडेट्स. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. आई होप आई वाज एबल टू प्रोवाइड सम वैल्यूज टू यू. अगर आपने कुछ भी नया सीखा है इस वीडियो से, अगर एक चीज भी नहीं सीखी है ना, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट एंड बस इतना ही कर दो. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.